بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ سعودی عرب سے $100 ملین امریکی اکاؤنٹس میں پہنچے، کیا جمال خاشقجی معاملے میں ڈیل ہو گئی؟ سعودی کونسلیٹ اور کونسل جنرل کے گھر سے فنگر پرنٹس حاصل کیے گئے، ٹارچر کے نئے آڈیو سامنے آئے، جرنلسٹ کے دوست نے کہا انتہائی بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ خاشقجی معاملے سے سعودی عرب کی امیج متاثر، نیدرلینڈز اور فرانس کے وزیروں نے کیا معاشی کانفرنس کے بائیکاٹ کا اعلان۔ واشنگٹن پوسٹ نے خاشقجی کا آخری آرٹیکل چھاپا، جرنلسٹ نے لکھا مڈل ایسٹ کی حکومتیں میڈیا کو دباتی ہیں، عرب بہار کی کرنیں جلد دم توڑ گئیں۔ سیریا سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے اسٹافن ڈی مستورا نے کیا استعفے کا اعلان۔ نابلس میں فلسطینیوں پر یہودی آباد کاروں کے حملے، عالمی عدالت نے اسرائیل سے کہا خانہ احمر میں توڑ پھوڑ نہ کرے۔ حکومت قانون بناتے ہوئے رام مندر کی تعمیر کرے، لوک سبھا الیکشن سے پہلے آر ایس ایس چیف کا آخری دسہرہ خطاب، سپریم کورٹ کے سبری مالا فیصلے پر بھی تنقید۔ مسلم لیڈرز نے کہا بی جے پی اور آر ایس ایس کو الیکشن سے پہلے مندر یاد آتا ہے، قانون کی حکمرانی پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جمال خاشقجی معاملے کی۔ ترکی کے عہدیداروں نے جرنلسٹ جمال خاشقجی معاملے کی تحقیقات کے سلسلے میں سعودی کونسلیٹ اور کونسل کے گھر سے بعض اہم سیمپلز حاصل کیے ہیں۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ ترک عہدیدار کونسل کے گھر کی تلاشی نہیں لیں گے، لیکن انہوں نے کونسلیٹ اور کونسل کے گھر کی 12 گھنٹوں تک تلاشی لی۔ ترک پولیس کے عہدیداروں نے بتایا کہ 11 منٹ کی ایک آڈیو ریکارڈنگ سے پتہ چلتا ہے کہ عمارت میں جمال خاشقجی کے ساتھ کونسلیٹ کے اندر مار پیٹ کی گئی۔ پتہ چلا کہ تحقیقاتی عہدیداروں نے تلاشی کے دوران بعض فنگر پرنٹس حاصل کیے، ایک عرب یونیورسٹی آف فورنسک سائنس کے پوسٹ مارٹم ایکسپرٹ صالح محمد القویدی کے فنگر پرنٹس بھی حاصل کیے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ان 15 لوگوں میں شامل تھا جو سعودی عرب سے خاص طور پر جمال خاشقجی کو قتل کرنے کے مقصد سے آئے تھے۔ کونسلیٹ کے ایک الیکٹرانک ساکٹ پر اس کے فنگر پرنٹس پائے گئے، ان میں سے کوئی بھی فرضی پاسپورٹ پر ترکی نہیں آیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کو سعودی عرب کی ضرورت ہے تاکہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑی جا سکے، اور وہ سعودی عرب کے ساتھ ناطہ توڑنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے سیکریٹری اسٹیٹ مائک پومپیو کے ترکی اور سعودی دورے کے بعد یہ بات کہی۔ نیدرلینڈز کی حکومت نے کچھ دنوں بعد سعودی عرب میں ہونے والی ایک معاشی کانفرنس کے لیے اپنے تجارتی ڈیلیگیشن بھیجنے کا فیصلہ برخاست کر دیا ہے۔ کئی کمپنیوں اور مالیاتی اداروں نے جمال خاشقجی معاملے کی وجہ سے اس کانفرنس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، جو اگلے ہفتے ریاض میں ہونے والی ہے۔ اسے ڈاؤس ان دی ڈیزرٹ یا ریگستان کا ڈاؤس کا نام دیا گیا تھا۔ فرانس کے ایک وزیر نے بھی سعودی عرب کا دورہ برخاست کرنے کا اعلان کیا۔ فرانس کے وزیر معاشیات بروٹونی میری نے کہا کہ جمال خاشقجی کے لاپتہ ہونے کا معاملہ بہت سنگین ہے، میں اگلے ہفتے ریاض نہیں جاؤں گا۔ ایک دن پہلے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف کی چیف کرسٹین لاگارڈے نے بھی سعودی عرب کا دورہ برخاست کر دیا تھا۔ اس سے پہلے جے پی مارگن، اوبر اور ایچ ایس بی سی نے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ سی این این، فائنینشیل ٹائمز اور نیو یارک ٹائمز نے بھی ایسا ہی اعلان کیا۔ امریکہ کے ٹریجری سیکرٹری اسٹیفن میوچن بھی اس تعلق سے غور کریں کہ کیا ریاض کانفرنس کا بائیکاٹ کیا جائے یا نہیں۔
इस दौरान तुर्क मीडिया में जमाल खाशकजी की हलाकत के सिलसिले में कई तफसीलात सामने आ रही हैं। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें काउंसलेट के अंदर दाखिल होने के कुछ मिनट के अंदर ही हलाक कर दिया गया। बाद में कातिलों ने उनका सर काट दिया और उनके टुकड़े कर दिए। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से ये दावा किया गया। अखबार ने बताया कि सऊदी काउंसिल जनरल अहमद अल उतैबी को रिकॉर्डिंग में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ये सब बाहर करो, तुम लोग मुझे मुश्किल में डाल दोगे। जिस पर जमाल खाशकजी को टॉर्चर करने वाला एक आदमी जवाब देता है कि खामोश बैठो, क्या तुम्हारा हशर भी ऐसा ही किया जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक सीनियर ओहदेदार के हवाले से मीडिया में सामने आने वाली इन तफसीलात की तस्दीक की। वॉशिंगटन पोस्ट ने जमाल खाशकजी का एक आर्टिकल छापा है जिसमें वो मिडिल ईस्ट में आज़ाद प्रेस की अहमियत के बारे में बोल रहे हैं। जमाल खाशकजी ने इस आर्टिकल में लिखा कि मिडिल ईस्ट की हुकूमतों ने मीडिया की आवाज़ों को दबाने की पॉलिसी अपनाई है और इसके लिए सख्ती बरती जाती है। जमाल खाशकजी ने अपने इस आर्टिकल में लिखा कि अरब बहार से जो उम्मीद की किरणें पैदा हुई थीं वो जल्द ही दम तोड़ गईं, बल्कि अंधेरा और गहरा हो गया। उन्होंने उन अरब आवाज़ों को एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत पर जोर दिया जो नफरत फैलाने वाली कौम परस्त हुकूमतों के जबर से आजाद हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि उनका यह आर्टिकल इसलिए छापा जा रहा है क्योंकि अब यह बात तकरीबन कबूल कर ली गई है कि वो हिफाजत के साथ वापस आने वाले नहीं हैं। वो 2 अक्टूबर को सऊदी काउंसलेट के अंदर गए थे, तब से नहीं देखे गए। बास खबरों के मुताबिक जमाल खाशकजी का ताल्लुक इख्वानुल मुस्लिमून से भी रहा। वो लंबे अरसे तक सऊदी हुकूमत से जुड़े रहे। जब से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का चार्ज संभाला है, वो सऊदी अरब की पॉलिसियों से इख्तलाफ कर रहे थे। वो पिछले 1 साल से अमेरिका में रह रहे थे और सऊदी अरब की कई पॉलिसियों, खासतौर पर यमन जंग, कतर के साथ ताल्लुकात तोड़ने और करप्शन के नाम पर क्रैकडाउन के खिलाफ आवाजें उठाते रहे। तुर्की के ओहदेदारों की तरफ से कहा गया कि उनके पास सबूत मौजूद हैं कि जमाल खाशकजी का काउंसलेट के अंदर कत्ल किया गया, लेकिन सऊदी अरब ने अपने किसी भी रोल के इम्कान को रद्द कर दिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो सऊदी अरब को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि सबूत मांग रहे हैं। जमाल खाशकजी के एक दोस्त ने कहा है कि तुर्क ओहदेदारों ने उन्हें बताया कि जमाल खाशकजी को इंतहाई बेरहमी से हलाक किया गया। एबीसी न्यूज से बातचीत करते हुए उनके दोस्त तोरान केसालगी ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में तुर्की की हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसियों के बाज़ ओहदेदारों से बातचीत की है। तुर्की के वजीर इंसाफ ने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वजीर इंसाफ अब्दुल हमीद गुल ने अवाम से कहा कि वो इस ताल्लुक से जानकारियों को नजरअंदाज करें। उन्होंने कहा कि जमाल खाशकजी मामले की मुकम्मल छानबीन हो रही है और इसके नतीजे जल्द ही सामने आ जाएंगे। एक्सपर्ट्स के हवाले से ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि जमाल खाशकजी मामले को दबाने के लिए सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका के बीच डील हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में धमकी दी थी कि अगर ये पता चले कि सऊदी अरब ने खाशकजी को कत्ल किया है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिर अचानक उनका लबो लहजा बदल गया। अब वो कह रहे हैं कि वो सऊदी अरब का साथ नहीं छोड़ सकते क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में सऊदी अरब की जरूरत है। इस दौरान एक रिपोर्ट के मुताबिक $100 मिलियन की रकम अमेरिका के बैंक अकाउंट्स में पहुंच गई। ओहदेदारों का दावा है कि जो रकम दी गई है उसका वादा बहुत पहले किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के रियाद दौरे के दौरान अमेरिका को $100 मिलियन देने का जो वादा किया था उसे पूरा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि यह पैसा मंगल के दिन अमेरिका के बैंक अकाउंट्स में पहुंचा, जिसका मकसद आईसिस से छुड़ाए गए सीरिया के इलाकों में इस्तेहकाम लाने के लिए अमेरिका की कोशिशों में मदद करना है। इस दौरान एक अमेरिकी ओहदेदार ने बताया कि इस पैसे की मुंतकिली महज इत्तेफाक नहीं है। सऊदी अरब के शाह सलमान से टेलीफोन पर बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो को सऊदी अरब और तुर्की भेजा था, जहां उन्होंने शाह सलमान, मोहम्मद बिन सलमान और तैयब एर्दोगान से मुलाकातें की। अमेरिकी मीडिया में कहा गया है कि जमाल खाशकजी मामले में सऊदी अरब का साथ देने की असल वजह यह है कि ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जमाल खाशकजी मामले से ईरान को फायदा हो सकता है। अमेरिका और दुनिया भर में सऊदी अरब के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। यह मामला एक ऐसे वक्त पेश आया है जब अमेरिका ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाना चाहता है। सीरिया से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदा स्टाफन डी मस्तूरा नवंबर में इस्तीफा दे देंगे। वो 4 साल से इस ओहदे पर हैं। 71 साल स्टाफन डी मस्तूरा ने सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि वो शख्सी वजूहात की बिना पर यह फैसला कर रहे हैं। उनका ताल्लुक इटली और स्वीडन से है। मस्तूरा ने कहा कि वो अपना बचा हुआ वक्त सीरिया में एक दस्तूरी कमेटी बनाने के सिलसिले में काम करेंगे।
यूनाइटेड नेशंस में ईरान के नायब सफीर ने कहा कि अमेरिका को चाहिए कि वो दहशत गर्दी की मदद करना बंद करे और अपनी गैर कानूनी मौजूदगी सीरिया से बर्खास्त करे। उन्होंने कहा कि खित्ते में 7 साल से जारी जंग को खत्म करने के लिए एक सियासी हल की कोशिशें हो रही हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए ईरान के नुमाइंदे इसहाक आले हबीब ने ये बात कही। दुनिया भर से मैं अब वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सऊदी अरब से $100 मिलियन अमरीकी अकाउंट्स में पहुंचे। क्या जमाल खाशकजी मामले में डील हो गई? सऊदी काउंसलेट और काउंसिल जनरल के घर से फिंगरप्रिंट्स हासिल किए गए। टॉर्चर के नए ऑडियो सामने आए। जर्नलिस्ट के दोस्त ने कहा इंतहाई बेरहमी से कत्ल किया गया। खाशकजी मामले से सऊदी अरब की इमेज मुतासिर। नेदरलैंड्स और फ्रांस के वजीरों ने किया मौशी कॉन्फ्रेंस के बॉयकॉट का ऐलान। वॉशिंगटन पोस्ट ने खाशकजी का आखिरी आर्टिकल छापा। जर्नलिस्ट ने लिखा मिडिल ईस्ट की हुकूमतें मीडिया को दबाती हैं। अरब बहार की किरणें जल्द दम तोड़ गईं। सीरिया से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे स्टाफन डी मस्तूरा ने किया इस्तीफे का ऐलान। नाबलस में फलस्तीनियों पर यहूदी आबादकारों के हमले। आलमी अदालत ने इसराइल से कहा खान अहमर में तोड़ फोड़ न करे। हुकूमत कानून बनाते हुए राम मंदिर की तामीर करे। लोकसभा इलेक्शन से पहले आरएसएस चीफ का आखिरी दशहरा खिताब। सुप्रीम कोर्ट के सबरीमाला फैसले पर भी तनकीद। मुस्लिम लीडर्स ने कहा बीजेपी और आरएसएस को इलेक्शन से पहले मंदिर याद आता है। कानून की हुक्मरानी पर भी यकीन नहीं रखते। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को सऊदी अरब के ईस्टर्न प्रोविंस में मुखालफिन के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जिसके दौरान एक औरत जख्मी हो गई। एक अरबी जबान की टीवी चैनल ने यह बात बताई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी सिपाहियों ने कतीफ इलाके में कई जगह धावे की, जिसके दौरान स्टन ग्रेनेड्स, आंसू गैस शेल्स और गोलियों का इस्तेमाल किया गया। जिन मकामात पर यह ऑपरेशन किया गया वहां बिजली काट दी गई। एक इलाके में आग भी लग गई। मकामी लोगों के हवाले से कहा गया कि धावे के दौरान एक औरत को गोली लगी, जिसमें वो जख्मी हो गई। वो औरत अपने अपार्टमेंट में थी जब उसे गोली लगी। उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन सिपाहियों ने काफी देर तक ऐसा करने से रोका। मगरबी किनारे के नाबलस टाउन में यहूदी आबादकारों के एक हमले में एक फलस्तीनी जख्मी हो गया। 70 से ज्यादा यहूदी आबादकारों ने यह हमला किया, जिन्हें पुलिस की हिफाजत हासिल थी। उन्होंने फलस्तीनी घरों और स्कूलों पर हमला किया। इस मौके पर झड़पें भी हुई। इसराइली पुलिस ने इस मौके पर आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल किया और फायरिंग की। एक फलस्तीनी नौजवान की रान पर गोली लगी। उसे नाबलस के एक हॉस्पिटल में शरीक किया गया। अमेरिका ने तरक्की पजीर मुल्कों के ग्रुप की लीडरशिप फलस्तीन को देने पर नाराजगी का इजहार किया है। जनरल असेंबली में मंगल को फलस्तीन को तरक्की पजीर मुल्कों या डेवलपिंग कंट्रीज की सदारत देने के लिए वोटिंग हुई। इस वोटिंग के दौरान 146 मुल्कों ने फलस्तीन के हक में वोट दिया। अमेरिका, इसराइल और ऑस्ट्रेलिया ने इसकी मुखालफत की। 15 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और 29 गैर हाजिर रहे। ये वोटिंग फलस्तीन को यूनाइटेड नेशंस के मुस्तकिल रुकन की हैसियत दिला सकती है।
انصاف کی عالمی عدالت نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ القدس کے قریب خان الاحمر گاؤں میں توڑ پھوڑ کی کارروائی نہ کرے اور وہاں بسنے والے فلسطینیوں کو زبردستی نہ ہٹائے۔ اسرائیلی عدالتوں نے اس بستی کو خالی کرانے کا حکم دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کو خان الاحمر گاؤں میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ ایرانی تیل پر امریکی پابندیوں کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ ایران ان پابندیوں کی وجہ سے اپنے کئی خریداروں سے محروم ہو سکتا ہے۔ ایسے میں ایرانی تیل کے جہازوں کا ایک قافلہ چائنا روانہ ہوا ہے۔ 22 ملین بیرل خام تیل کے ساتھ یہ جہاز روانہ ہوئے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ 4 نومبر کے بعد سے ایرانی تیل خریدنے والے ملکوں پر پابندیاں لگائی جائیں گی۔ ایرانی تیل کے یہ جہاز نومبر کے شروع میں چائنا پہنچیں گے۔ پابندیوں کی دھمکی کے باوجود ہندوستان کی 2 آئل کمپنیوں نے بھی ایران سے تیل خریدنے کا آرڈر دیا ہے۔ ملیشیا کے اپوزیشن لیڈر کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن عہدیداروں نے پوچھ تاچھ کے بعد انہیں گرفتار کیا۔ ان پر منی لانڈرنگ، بھروسہ توڑنے اور طاقت کے غلط استعمال کا الزام ہے۔ احمد زاہد حمیدی ملیشیا کے سابق وزیر اعظم ہیں۔ وہ اسکینڈل سے دوچار سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کے قریبی اتحادی تھے۔ سوڈان کے سابق صدر عبد الرحمان سیواز الزہاب کا سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں انتقال ہو گیا۔ وہ 1985 اور 1986 میں سوڈان کے صدر تھے۔ وہ ایک سابق فوجی آفیسر تھے جو ایک بغاوت کے بعد صدر بنے تھے۔ آر ایس ایس چیف موہن بھاگوت نے کہا ہے کہ حکومت کو قانون بناتے ہوئے ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کا راستہ صاف کرنا چاہیے۔ دسہرے پر اپنے سالانہ خطاب میں انہوں نے کہا کہ عزت نفس کے نقطۂ نظر سے رام مندر کی تعمیر ضروری ہے اور اس سے ملک میں یکجہتی اور خیر سگالی کا ماحول پیدا ہوگا۔ 2019 کے لوک سبھا الیکشن سے پہلے یہ آر ایس ایس چیف کا آخری وجے دشمی خطاب تھا۔ انہوں نے کہا کہ رام مندر قومی مفاد کا معاملہ ہے اور بعض بنیاد پرست طاقتیں اپنی خود غرضی کے لیے فرقے وارانہ سیاست کرتی ہیں اور سیاست کی وجہ سے رام مندر کی تعمیر میں دیر ہو رہی ہے۔ آر ایس ایس چیف نے کہا کہ سبری مالا کے تعلق سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے بے چینی پیدا ہوئی ہے اور اس سے سماج بٹ گیا ہے۔ موہن بھاگوت نے کہا کہ اس فیصلے سے پہلے کروڑوں بھکتوں کے عقیدے اور مذہبی رہنماؤں سے بات نہیں کی گئی۔ اور یہ اگر ہمارے گورو پروش ہے تو ان کا اسمارک ہونا چاہیے۔ اب پتا چل گیا کہ وہاں مندر ہے، نیچے ہے، سب سدھ ہو چکا ہے، پھر بھی نیالے میں پرکرن ہے، وہ لمبا ہو رہا ہے۔ اب کتنا لمبا ہو جائے بھائی؟ ہندو سماج تو کتنے ورشوں سے راہ دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ جانتے ہیں، ستیہ بھی جانتے ہیں، نرنے ترنت آ بھی سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو اس پر راجنیتی چلانی ہے، وہ اس کو لمبا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ راجنیتک لوگ ہیں، یہ راجنیتی نہیں آتی تو مندر کب کا بن چکا ہوتا، سب کے سہیوگ سے بنتا، لیکن راجنیتی آ گئی بیچ میں۔ اور اس لیے رام جنم بھومی آندولن کے ایک سہیوگی سنگٹھن کے ناطے ہم کہتے ہیں نہیں، رام جنم بھومی پر شیگرتا پوروک رام مندر بننا چاہیے۔ یہ ایسے ہے، اور اس پرکرن کو کیول لمبا کرنے کے لیے جو ہستکشیپ چلے ہیں، وہ پرکرن لمبا نہیں ہونا چاہیے، جلدی نرنے ملنا چاہیے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ سرکار قانون بنائے، قانون بنا کر مندر بنائے۔ اس معاملے میں ہمارے سنت مہاتما جو بھی قدم اٹھائیں گے اس کے ساتھ سنگ ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ظفر یاب جیلانی نے کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کو الیکشن کے قریب مندر یاد آتا ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے الزام لگایا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس قانون کی حکمرانی میں یقین نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس بات کی مثال ہے کہ ملک کو جابر نظام حکومت میں بدلا جا رہا ہے۔ یہ تو بیسک کانسٹیٹیوشن کے بیسک اسٹرکچر کے خلاف ہے، یہ رائٹ ٹو ایکوالٹی کا وائلیشن ہوگا۔ مگر کریے، آپ کون روک رہا ہے؟ آپ ٹوٹالیٹیرین آئیڈیالوجی میں بھروسہ کرنے والے ہیں، یقین کرنے والے ہیں، آپ کی سرکار ہے جو ٹوٹالیٹیرزم کو پروموٹ کرتی ہے، تو کریے آپ۔ بات بن سکتی ہے نہیں، کنسنسس تو یہ ٹوٹالیٹیرزم کی مثال ہے نا، یہ سرکار اور آر ایس ایس، یہ تو اگنورنٹ ہیں، لا کو جانتے نہیں ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں لوگ۔ So let's do English. So controversial comments coming in from the RSS chief ahead of elections, saying that an ordinance should be passed. Now this comes at a time when the matter is pending in the Supreme Court. What's your reaction? Well, do it now. Who's stopping the RSS and their government? Because this is a clear example when a nation is converted into totalitarianism,
This is an example of that. So RSS and BJP believes in totalitarianism. They do not believe in pluralism or in rule of law. So you do it. The RSS chief has shown his ignorance of law, because in the Ismail Farooqi judgment, the Supreme Court has clearly said that you cannot make a law for a particular religion. It goes against the basic structure of the Constitution, and it will be a violation of Article 14. But you want to do it, you do it, because they believe in totalitarianism. That is what they are doing everywhere. बीजेपी लीडर्स ने मोहन भागवत के बयान की तायद की और कहा कि मंदिर जल्द बनना चाहिए। केरला की सबरीमाला मंदिर के पास तनाव बरकरार है। बीजेपी के कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मसले पर बंद से केरला में मिला जुला असर देखा गया। कई जगह आम जिंदगी ठप हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने हर उम्र की औरत को सबरीमाला मंदिर में दाखिले की इजाजत दी है, जिसके खिलाफ हिंदू तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। कश्मीर वादी में एनकाउंटर में सिविलियन की हलाकत के खिलाफ हड़ताल की गई, जिससे आम जिंदगी ठप हो गई। एक दिन पहले यह एनकाउंटर हुआ था, जिसमें एक पुलिस मुलाजिम, एक सिविलियन और 2 मिलिटेंट्स हलाक हुए थे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साबिक चीफ मिनिस्टर नारायण दत्त तिवारी नहीं रहे। वो 93 साल के थे। उन्हें सितंबर 2017 में ब्रेन स्ट्रोक के बाद दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। नारायण दत्त तिवारी अकेले सियासतदान हैं जो 2 रियासतों के चीफ मिनिस्टर रहे। तिवारी मरकजी वजीर और गवर्नर भी रहे। कई मामलात पर उनकी निजी जिंदगी तनाज़ात के शिकार रही। तिवारी 3 मरतबा उत्तर प्रदेश के और 1 मरतबा उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रहे। वो खारजा, फाइनेंस, पेट्रोलियम और कॉमर्स और इंडस्ट्री के मरकजी वजीर भी रहे। उन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर भी बनाया गया था। तिवारी ने अपनी सालगिरह के दिन अपनी आखिरी सांस ली। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें निमोनिया और बुखार हो गया था। उन्होंने जुमेरात को तीसरे पहर 2:50 पर अपनी आखिरी सांस ली। पाकिस्तान के साबिक लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने आखिरकार स्पॉट फिक्सिंग का इकरार कर लिया है। उन पर पहले ही पाबंदी लगाई गई थी। उन्होंने अपने जुर्म का अब इकरार किया और मुल्क के क्रिकेट फैंस से माफी मांगी। कनेरिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और अवाम मेरी बात को समझें और मुझे माफ करें। मैंने एक सट्टेबाज के साथ मिलकर बहुत बड़ी गलती की और मुझे इसकी सजा मिली है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सऊदी अरब से $100 मिलियन अमरीकी अकाउंट्स में पहुंचे। क्या जमाल खाशकजी मामले में डील हो गई? सऊदी काउंसलेट और काउंसिल जनरल के घर से फिंगरप्रिंट्स हासिल किए गए। टॉर्चर के नए ऑडियो सामने आए। जर्नलिस्ट के दोस्त ने कहा इंतहाई बेरहमी से कत्ल किया गया। खाशकजी मामले से सऊदी अरब की इमेज मुतासिर। नेदरलैंड्स और फ्रांस के वजीरों ने किया मौशी कॉन्फ्रेंस के बॉयकॉट का ऐलान। वॉशिंगटन पोस्ट ने खाशकजी का आखिरी आर्टिकल छापा। जर्नलिस्ट ने लिखा मिडिल ईस्ट की हुकूमतें मीडिया को दबाती हैं। अरब बहार की किरणें जल्द दम तोड़ गई। सीरिया से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे स्टाफन डी मस्तूरा ने किया इस्तीफे का ऐलान। नाबलस में फलस्तीनियों पर यहूदी आबादकारों के हमले। आलमी अदालत ने इसराइल से कहा खान अहमर में तोड़ फोड़ न करे। हुकूमत कानून बनाते हुए राम मंदिर की तामीर करे। लोकसभा इलेक्शन से पहले आरएसएस चीफ का आखिरी दशहरा खिताब। सुप्रीम कोर्ट के सबरीमाला फैसले पर भी तनकीद। मुस्लिम लीडर्स ने कहा बीजेपी और आरएसएस को इलेक्शन से पहले मंदिर याद आता है। कानून की हुक्मरानी पर भी यकीन नहीं रखते। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फिरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।